Hello everyone, welcome to Students Point. So last day in our chapter 4 physical policy we have seen the definition for physical policy. Thereafter we have seen the objectives of physical policy, how government takes different steps like either by increasing or decreasing taxation or by increasing or decreasing spending government fulfills its objective under physical policy. Then we have seen parts of budget which were two, revenue budget and capital budget. In that we have seen that which part of spending or receipts come into revenue budget and which part come into capital budget. Thereafter we have seen annual financial statement, demand for grants, and we have understood different kind of deficits like revenue deficit, effective revenue deficit, physical deficit, budget deficit, and primary deficits. All these concepts have already been taught in the previous class. Okay, so today the last topic we have understood was deficit, and we have said that how government fulfill its deficit. So today we are going to understand that how government fulfills its deficit. So the basic definition of deficit was that the difference between government's expenditure and government's earnings is called as deficit. Though in different kinds of deficit there were many differences, but that was part of previous video. But now how government fulfills this difference we have to understand today. So let's begin. So the question is how government manage its deficits. Say government manage its deficits by monetized deficit or by ways and means advance. So what is monetized deficit? See, under this monetized deficit, government borrows money from RBI and RBI provide loan to government by printing fresh currencies. RBI prints fresh currencies, and when RBI prints fresh currency to monetize deficit or to provide loan to fulfill the deficit of the government, then that loan is called as monetized deficit. However, however, by the FRBM Act, एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम है FRBM Act in 2003. FRBM means Physical Responsibility and Budget Management Act. It was passed in the year of 2003. This act disallow monetized deficit. क्यों? क्योंकि मोनेटाइज डेफिसिट में आरबीआई फ्रेश करेंसीज यानी कि न्यू करेंसी को प्रिंट करती है. ऐसे में मार्केट में न्यू करेंसीज और ज़्यादा पैसे अवेलेबल हो जाते हैं. दैट इज़ वाई FRBM एक्ट 2003 डिसअलाउड दिस एक्ट. हमें इस एक्ट के बारे में बहुत सारे डिटेल्स और भी पढ़ने हैं, बट फॉर नाउ रिमेंबर दैट दिस एक्ट डिसअलाउ मोनेटाइज्ड डेफिसिट. ओके, सो अब गवर्नमेंट के पास कौन सा ऑप्शन बचता है टू मैनेज इट्स डेफिसिट. So now the government has option of ways and means advance. So what is it? See, under this ways and means advance, RBI provides temporary loan facility to the government. Okay, and here RBI serves as a banker to the government against ad hoc treasury bill. See, monetized deficit में RBI directly money print करके लोन दे रही थी गवर्नमेंट को, लेकिन यहाँ पे आरबीआई गवर्नमेंट को लोन तभी देगी व्हेन गवर्नमेंट विल गिव ट्रेजरी बिल. ट्रेजरी विल सर्व एज अ लेट्स से गारंटी कि पैसा गवर्नमेंट वापस आरबीआई को देगी. अदरवाइज़ पहले क्या होता था कि आरबीआई से गवर्नमेंट पैसा लेकर फिर वापस करती नहीं थी कि पैसा हमारे पास है ही नहीं. सो नाउ गवर्नमेंट विल हैव टू पे बैक दैट मनी एज this loan under ways and means advance is provided only against ad hoc treasury bill. अब ये ट्रेजरी बिल क्या है इसे हम समझेंगे आगे, लेकिन सिंपल सी बात अभी ये समझिए कि ट्रेजरी बिल इज़ नथिंग बट अ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. हालांकि ये बात भी ध्यान रखें कि अंडर वेज एंड मीन्स एडवांस नो कोलेट्रल इज़ रिक्वायर्ड. हाउएवर इफ़ गवर्नमेंट विल नॉट पे ऑन टाइम, अगर गवर्नमेंट लोन रीपे बैक नहीं करती है टाइम पे, देन गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव टू पे पेनाल्टीज, यानी कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट वुड बी चार्ज्ड
ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट लोन्स को रिटर्न करने में डिले करती है तो ये दो कंसेप्शन उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी, मॉनेटाइज डेफिसिट एंड वेज एंड मीन्स एडवांस. नाउ वी विल हैव टू स्टडी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003. What is it? See, the purpose of this act was to introduce transparency in the fiscal management within the country to ensure फिजिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री. पहले क्या होता था, गवर्नमेंट आर्बिट्रेटली अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करती थी और कोई ट्रांसपेरेंसी कंट्री में हो नहीं पा रहा था. दैट इज़ वाई दिस एक्ट वाज पास्ड. तो गवर्नमेंट खास करके इलेक्शंस के टाइम बहुत ही आर्बिट्रेटली एक्सपेंड करती थी मनी, पानी की तरह. ऐसे में जो फ्यूचर अपकमिंग गवर्नमेंट होती थी उन पे फिजिकल बर्डन काफ़ी बढ़ जाता था. तो इसी चीज़ को रोकने के लिए ये लाया गया फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इन 2003. सो व्हाट वेयर द प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट? सी, दिस एक्ट मैंडेटेड दैट certain statements would have to be presented in the parliament, like macroeconomic framework statement. This FRBM Act 2003 said that macroeconomic framework statement would have to be presented in the parliament. What is it, this macroeconomic framework statement? This macroeconomic framework statement is an assessment of overall growth prospects of the economy with a specific underlying assumptions. Okay, now this FRBM Act 2003 also mandated for the presentation of medium term fiscal policy statement. Now what is this medium term fiscal policy statement? तो मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट में कुछ नहीं बल्कि गवर्नमेंट को एक पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर मीडियम टर्म प्रेजेंट करना होगा कि व्हाट इज़ द एम ऑफ द गवर्नमेंट टू अचीव इन मीडियम टर्म. कितना गवर्नमेंट एक्सपेंड करना चाहती है और कितना गवर्नमेंट रिसिप्ट या फिर टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस सोर्सेज या फिर डेट से मनी रेज करना चाहती है. ओके, एंड द थर्ड वन, इट मैंडेटेड टू प्रेजेंट मीडियम टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट. अगेन एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट में क्या होगा, पर्टिकुलरली इम्फेसिस किया जाएगा एक्सपेंडिचर पे कि कितना एक्सपेंसेस आप करने जा रहे हैं इन मीडियम टर्म. साथ ही FRBMA एक्ट 2003 में कुछ टारगेट्स भी सेट किया गया. इन टारगेट्स में क्या रखा गया, पहला टारगेट था कि रेवेन्यू डेफिसिट को हर साल 0.5% से कम करना है और अल्टीमेटली 2008 से 2009 फिनंशियल ईयर आने तक गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट 0% पे पहुंचाना है. नाउ द क्वेश्चन मस्ट अराइज हियर दैट व्हाट इज़ रेवेन्यू डेफिसिट. तो रेवेन्यू डेफिसिट हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो. इन द लास्ट वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड रेवेन्यू डेफिसिट इन डिटेल. So this FRBMA 2003 set a target to reduce revenue deficit per year by 0.5% of GDP, and by reducing 0.5% annually, the target was to achieve 0% of revenue deficit by year 2008 to 2009. तो रेवेन्यू डेफिसिट को कम क्यों करना था, क्योंकि लास्ट डे हमने देखा था कि रेवेन्यू डेफिसिट was the result of expenses made on maintenance, and expenses under revenue budget was not resulting into any capital creation. इसके कारण कोई कैपिटल क्रिएट नहीं हो रहा था, ये सिर्फ मेंटेनेंस, सैलरी, इन सब में पैसा खर्च हो रहा था. तो कहा जाता है कि रेवेन्यू डेफिसिट जितना कम हो गवर्नमेंट की फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी होगी. सो द टारगेट वॉज सेट to reduce revenue deficit to optimum level and significantly to 0% by 2008 to 2009. Now, the next target set under this scheme was to reduce physical deficit every year by 0.3%, 0.3% of GDP, and ultimately by reducing
this fiscal deficit by 0.3% annually arrive at 3% by 2008। तो यहाँ पे टारगेट ये सेट किया गया फिजिकल डेफिसिट में कि हर साल फिजिकल डेफिसिट को 0.3% से कम करेंगे और ग्रेजुअली 0.3% से कम करते करते 2008 तक हमें फिजिकल डेफिसिट को 3% तक पहुंचाना है। तो सपोज कीजिए कि फिजिकल डेफिसिट अभी अगर गवर्नमेंट का 4.5% है, तो टारगेट था कि हर साल इसे 0.3% कम करते जाएंगे और अल्टीमेटली हम इसे 3% तक पहुंचाएंगे। और ये काम हमें करना था 2004 से ही, क्योंकि ये एक्ट पास किया गया 2003 में, और 2004 से हमें हर साल रेवेन्यू डेफिसिट को 0.5% से कम करना था और फिजिकल डेफिसिट को 0.3% से कम करना था। और अल्टीमेटली हमें पहुंचना कहाँ था? तो 3% फॉर फिजिकल डेफिसिट एंड 0% फॉर रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर रेवेन्यू डेफिसिट को 0% करना था लेकिन फिजिकल डेफिसिट को 3% क्यों करना था? क्योंकि देखिए, एज वी हैव डिस्कस्ड दैट इन रेवेन्यू डेफिसिट क्यों आकार हो रहा था? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनी कैपिटल क्रिएशन। रेवेन्यू डेफिसिट में खर्चे जो हो रहे थे उसमें कोई कैपिटल क्रिएशन नहीं हो रहा था, वो सिर्फ मेंटेनेंस और सैलरी में खर्च हो रहे थे। तो जो पैसा सैलरी में जाए या मेंटेनेंस में जाए उन्हें इकोनॉमी में नॉन प्रोडक्टिव सैलरी या नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस माना जाता है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर में कुछ कैपिटल एसेट्स क्रिएट हो रहे थे, लाइक if government is investing, we have taken the example last day that how government is expending money to create capital assets like solar power plant, जैसे कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेवा सोलर पावर प्लांट इन एमपी इनॉग्रेट किया था। इससे पहले काकड़ा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी इनॉग्रेट किया गया था। सिमिलरली गवर्नमेंट रेलवे प्रोजेक्ट्स बना रही है, रेलवे लाइंस बिछा रही हैं देश में। तो ये सब प्रोजेक्ट्स जो हैं आर पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज कंसिडर टू बी प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर तो हमारे लिए अच्छा माना जाता है। एंड वी हैव डिस्कस्ड लास्ट डे दैट फिजिकल डेफिसिट हैज़ 2 पार्ट्स। वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो रेवेन्यू डेफिसिट को तो हमें 0% पे लाना है, लेकिन FRBM एक्ट अलाउ करती है कैपिटल डेफिसिट होने के लिए। क्यों? क्योंकि कैपिटल डेफिसिट डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बेहतर माना जाता है। ये दिखाता ये है कि गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा रुपए खर्च कर रही है फॉर द क्रिएशन ऑफ एसेट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर प्रोजेक्ट्स, रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज। तो ये सब खर्चे अगर कैपिटल एसेट्स क्रिएट करने में किए जा रहे हैं तो वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बेहतर है। ऐसे में वी विल से कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए कैपिटल डेफिसिट अलाउड होने चाहिए, लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट अलाउड नहीं होने चाहिए, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट में जो खर्चे हो रहे हैं वो नॉन प्रोडक्टिव इन नेचर हैं, वहीं कैपिटल डेफिसिट में जो खर्चे हो रहे हैं वो प्रोडक्टिव नेचर के हैं। तो भले आज खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा है फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़, लेकिन ये एसेट्स ही हैं जो बाद में हमें प्रॉफिट देंगे। जैसा कि हमने एक एग्जांपल देखा था कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे किसान रेल चलाए हैं। तो वो किसान रेल चलाए हैं तो अल्टीमेटली इट इज़ पार्ट ऑफ व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ पे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट और बाद में ये एसेट ही हैं जो गवर्नमेंट को प्रॉफिट सीक करेंगे। फॉर इंस्टेंस किसान रेल से क्या होगा? जल्दी से जल्दी सामान एक जगह से दूसरे स्टेट्स तक पहुंच पाएंगे और उन प्रोडक्ट्स को बेचकर प्रॉफिट्स गेन किया जा सकता है। और किसान रेल बहुत सारे, जैसे कि फर्स्ट किसान रेल वॉज स्टार्टेड फ्रॉम देवलाली टू दानापुर, देवलाली इन महाराष्ट्र टू दानापुर इन बिहार। तो ऐसे कैपिटल एसेट्स क्रिएशन के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं इज़ कंसिडर टू बी हेल्दी एंड गुड फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। बट it is the target of developing countries like India to reduce its revenue deficit, and it is good for Indian economy as well.
That is the reason why FRBMA 2003 has set the target to reduce revenue deficit to 0% by year 2008 to 2009, while capital deficit is allowed for India, and that is the reason why you see fiscal deficit to be 3%, or the target set to reduce fiscal deficit was to 3%, because fiscal deficit includes both revenue deficit plus capital deficit. The formula of fiscal deficit is equal to revenue deficit plus capital deficit. We have already seen this concept in the previous video, so no need to go in elaboration here. So when this will be 0%, capital deficit will automatically be 3%. Why? Because fiscal deficit is 3%. So when RD will be 0%, automatically fiscal deficit is equal to capital deficit. So FRBMA allows capital deficit to be 3%. So I hope this concept of fiscal deficit, revenue deficit, capital deficit is clear, and the targets set under FRBMA 2003 is also clear to everyone. Now last day we have already discussed effective revenue deficit and primary revenue deficit or primary deficit. So no need to go in detail again. Now we have to understand government debts. What are government debts and what are part of it? See, government debt is classified into external debts and internal debts. Now quite obvious, external debt means loans from foreign countries, international financial institutions, and external commercial borrowings, or borrowing from NRIs or NRI deposits into Indian banks, bilateral, multilateral debts, and trade credits. Bilateral debts, like we borrow money from countries like Japan, countries like UK, US, and multilateral debts, like we borrow money from multilateral institutions like Asian Development Bank. Trade credit, we borrow some money from IMF. NRI deposits in the country. So all these kinds of credit come into external debts. While internal debts, this kind of debt includes those loan which is taken by government from sources within the country, like government borrows money from RBI, government borrow money from several other banks or private entities or from the market itself. तो ये लोन यहाँ से अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो इट इज़ पार्ट ऑफ इंटरनल डेट. नाउ government liabilities. Government will also have to pay some liabilities, or there are some liabilities over the government against consolidated fund of India. ये अदर लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपने अपने मनी को अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जमा किया है तो योर मनी इफ़ डिपॉजिटेड इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ other liabilities on government. There are certain other liabilities apart from external debts and internal debts. और ये other liabilities में क्या क्या आते हैं, तो आपके सेविंग डिपॉजिट्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आपने अगर कोई इंश्योरेंस बाई किया है तो इट इज़ पार्ट ऑफ अदर लाइबिलिटीज़, क्योंकि इन केस इफ़ यू रिक्वायर द सम डिपॉजिटेड इन इंश्योरेंस तो आपको इंश्योरेंस गवर्नमेंट को आपको इंश्योरेंस पे बैक करना होगा. तो इंश्योरेंस, आपकी सेविंग मनी इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, दीज आर पार्ट ऑफ अदर लाइबिलिटीज़. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज मसाला बॉन्ड. व्हाट इज मसाला बॉन्ड? सी, द नेम मसाला or this masala bond was first used by International Financial Corporation. It is part of World Bank. So International Financial Corporation for the first time used this masala bond for the bonds issued by Indian entities. ये मसाला बॉन्ड इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि मसाला और स्पीसीज, इंडिया इज़ नोन फॉर स्पीसीज, ट्रेड इन स्पीसीज. हिस्टोरिकली इंडिया स्पीसीज़ के ट्रेड के लिए जाना जाता है, इसीलिए
कल्चरल सिंबल के रूप में जो बॉन्ड्स इंडियन एंटिटीज़ रेज करती हैं या इशू करती हैं, उन बॉन्ड्स को IFC ने मसाला बॉन्ड बोला. ओके, सो व्हाट इज़ मसाला बॉन्ड? सी, मसाला बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन एंटिटीज़ आउटसाइड इंडिया. ध्यान दें कि मसाला बॉन्ड देश के अंदर इशू नहीं किया जाता, बल्कि इट इज़ इशूड आउटसाइड इंडिया टू फॉरेनर्स. बट दिस मसाला बॉन्ड इज डिपॉजिटेड इन और डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपी. तो सपोज कीजिए कि मसाला बॉन्ड ऑफ ₹100 करोड़ हैज़ बिन इशूड, और कोई फॉरेनर है, लेट्स ए ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स, वो चाहते हैं कि इस 100 करोड़ रुपीज़ और इशू ऑफ बॉन्ड्स में वो इन्वेस्ट करें. तो वो डॉलर या अपने करेंसी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. पहले उनके अपने करेंसी को, लेट्स से कोई अमेरिकन है, वो मसाला बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो पहले उन्हें अपने US डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना होगा और फिर उस रुपी को वो मसाला बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. द कॉन्सेप्शन इज सिंपल दैट मसाला बॉन्ड कैन बी डिनोमिनेटेड ओनली इन इंडियन रुपी, नॉट इन फॉरेन करेंसी. वो फॉरेन करेंसी में इसे डिनोमिनेट नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें पहले अपने करेंसी को इंडियन रुपी में कन्वर्ट कराना होगा और फिर मसाला बॉन्ड में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि देखिए, फॉरेन करेंसी में हमेशा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है. ऐसे में अगर वो फॉरेन करेंसी में इन्वेस्ट कराते हैं तो आम तौर पे डॉलर टाइम टू टाइम स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है. तो मसाला बॉन्ड में अगर वो इन्वेस्ट करेंगे इन डॉलर, तो कंपनीज़ को उन्हें रिटर्न भी पे करना होगा डॉलर में. तो चूँकि डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो हमारी कंपनीज़ को जब वापस इंटरेस्ट पे करना होगा डॉलर में, तो हमारी कंपनीज़ को नुकसान झेलना पड़ेगा, बिकॉज दे विल हैव टू रिटर्न मोर मनी दैन इट वॉज इन्वेस्टेड. इसलिए वो चाहती हैं कंपनीज़ कि आप रुपी में ही इन्वेस्ट करें और हम आपको रुपी में ही पैसा वापस करेंगे, डॉलर का कोई बीच में रोल ही नहीं होगा. तो ऐसे में एक फिनंशियल सिक्योरिटी मिल जाती है ओवर दी चेंजिंग वैल्यू ऑफ US डॉलर और स्ट्रेंथनिंग US डॉलर. तो यहाँ पे करेंसी फ्लक्चुएशंस से मसाला बॉन्ड कम्प्लीटली इम्यून रहता है. Will you remember these concepts? That masala bond can be denominated only in Indian rupee, not in foreign currency. And the purpose for this is to make masala bonds immune to currency fluctuations. Now, there is a term called as physical drag. What is physical drag? See, physical drag is a situation where inflation pushes income into higher tax bracket. And this result into increase in income taxes but no increase in real purchasing power. The definition is simple. फिजिकल ड्रैग में क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण आपकी सैलरी बढ़ा दी गई. आपने सुना होगा महंगाई भत्ता. महंगाई भत्ता यानी कि अलाउंस पे किया जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. तो होता क्या है इन दिस केस कि इन्फ्लेशन इंक्रीज करने के कारण आपको अलाउंस पे कर रही है गवर्नमेंट या एक्स्ट्रा सैलरी पे कर रही है गवर्नमेंट. लेकिन प्रॉब्लम इससे ये हुआ कि जैसे ही गवर्नमेंट ने आपकी सैलरी बढ़ाई ड्यू टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, आपका सैलरी बढ़ते ही एक हायर टैक्स ब्रैकेट में आ गया. जैसे कि सपोज़ करें कि गवर्नमेंट का टारगेट है या फिर टैक्स ब्रैकेट है कि 0 to 5 लाख सैलरी वाले लोगों पे 5% टैक्स लगेगा और 5 से 8 लाख कमाने वाले लोगों पे 10% टैक्स लगेगा. तो सपोज़ कीजिए कि आपकी सैलरी पहले 4.5 लाख रुपए थी, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया, इन्फ्लेशन बढ़ाया या इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो आपकी सैलरी बढ़ाई गई बाय द गवर्नमेंट. तो जैसे ही गवर्नमेंट ने सैलरी बढ़ाया आपका सैलरी बढ़कर 5,20,000 हो गया पर एनम. तो भले ही आपकी सैलरी 5 लाख से अपर ब्रैकेट टैक्स में आ गई, क्योंकि आपका सैलरी हो गया 5.2 लाख, तो अब आपको
इस ब्रैकेट में टैक्स पे करना होगा, तो आपको अब कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है? 10%। तो ऐसे में जो आपको प्रीवियस टैक्स पे करना पड़ रहा था उससे कहीं ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है अब, जबकि स्थिति ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। इन दैट टू केस यू हैव टू पे मोर टैक्सेस। वाई? बिकॉज योर इनकम हैज़ इंटर्ड इनटू न्यू एंड हायर टैक्स ब्रैकेट। तो इसमें सिंपल सी प्रॉब्लम ये होती है फिजिकल ड्रैग में कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन योर इनकम रेज्ड, बट योर इनकम आफ्टर इंक्रीजिंग entered into a new and higher tax bracket, which resulted into a condition where you have to pay more taxes, and this result into no increase in real purchasing power. क्यों? क्योंकि आपने अब ज़्यादा टैक्स पे करना है, तो आपके परचेजिंग पावर में कोई बढ़ोतरी या कोई इंक्रीमेंटल या इंक्रीज देखने को नहीं मिलता है। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ फिजिकल ड्रैग। Now, there is a term called as physical neutrality. What is physical neutrality? See, physical neutrality is a condition when net effect of taxation and public spending is neutral. जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है और जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है उसका इफेक्ट जब न्यूट्रल हो, उस कंडीशन को हम कहते हैं फिजिकल न्यूट्रलिटी। ये कंसेप्शन और भी क्लियर होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा है तो। प्रीवियस वीडियो मीन्स लास्ट वीडियो, दैट द वीडियो विच आई हैव अपलोडेड लास्ट डे। ओके, नाउ क्राउडिंग आउट इफेक्ट, व्हाट इज इट? सी, क्राउडिंग आउट इफेक्ट बहुत ही सिंपल कंसेप्शन है कि अगर गवर्नमेंट बैंक से ज़्यादा लोन बोरो करने लगे तो उस कंडीशन में पब्लिक सेक्टर बैंक्स या बैंक्स के पास बहुत ही कम पैसे बच जाते हैं टू लेंड टू अदर प्राइवेट एंटिटीज़। ऐसे में प्राइवेट एंटिटीज़ का क्राउड आउट हो जाता है, यानी कि वो अब लोन लेने की स्थिति में नहीं रह पाते हैं। दिस कंडीशन इज नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट। इन इंग्लिश आई एम एक्सप्लेनिंग इट, क्राउडिंग आउट। इट इज़ द कंडीशन वेयर एक्सेसिव गवर्नमेंट बोरोविंग कैन लीड टू श्रिंकेज और लोअरिंग ऑफ liquidity in the market, and it forces the interest rate to go high, and thus it affect the private investments. क्योंकि जब गवर्नमेंट ने बहुत सारा रुपए लोन ले लिया फ्रॉम द बैंक्स और फ्रॉम द मार्केट, तो मार्केट में लिक्विडिटी अब रही नहीं। लिक्विडिटी मतलब पैसा और मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई जब मार्केट में कम हो गया है तो इंटरेस्ट रेट लोन्स पे क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट लोन पे ज़्यादा होगा तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोन लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उन्हें अब ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है लोन पे दैन प्रीवियस टाइम्स, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहेंगे। वाई? बिकॉज उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऐसे में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट होगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा कंट्री में। तो ये क्राउडिंग इफेक्ट और क्राउडिंग आउट इफेक्ट सही नहीं माना जाता। Now there is a condition called as pump priming. What is pump priming? See, pump priming क्या है? It is the deficit financing and spending by the government. ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में किया जाता है पम्प प्राइमिंग। जब कभी ऐसा हो कि मार्केट में बहुत ही पैसे की कमी हो जाए या मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ही कम हो जाए, इन दैट केस गवर्नमेंट गोज़ फॉर डेफिसिट फिनांसिंग और स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है और मनी को मार्केट में सप्लाई करने की कोशिश करती है, और ये खास करके किया जाता है ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ रिसेशन, जैसे कि अभी हुआ हमारे कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन पीरियड में, जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ही स्लो डाउन हो गया, लिक्विडिटी इन द मार्केट काफ़ी घट गई, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स स्टार्ट किए, जैसे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अदर्स स्कीम। उसमें लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं जस्ट टू गिव बूस्ट टू इकोनॉमी। नाउ देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज ट्विन डेफिसिट, बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ट्विन डेफिसिट, let me inform those students who want to enroll yourself into the course for UPSC or PCS for this year 2021
Then the details for the course has been provided below in the description box of the video. Go there and read the details of the course, and you can subscribe to the course as soon as possible, as the examination for UPSC prelims exam 2021 will be held by end of the month of June. So only around 6 months is left. So do enroll as soon as possible. The link for subscription has been provided in the description box as well as in the comment section. Okay, so now let's understand twin deficit. What is it? Say twin deficit is the condition of worsening of both current account deficit as well as fiscal deficit. Now we have already understood in detail what is fiscal deficit, but what is current account deficit we will understand later on. बट यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कि ट्विन डेफिसिट इज़ द कंडीशन ऑफ वर्सनिंग ऑफ बोथ करेंट अकाउंट डेफिसिट एज वेल एज फिजिकल डेफिसिट। और ये कंडीशन किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ही बुरा होता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स बहुत ही कम हो गई है और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर काफ़ी बढ़ गया है। ओके, नाउ देयर इज अ टर्मिनोलॉजी कॉल्ड एज फिजिकल क्लिफ। व्हाट इज फिजिकल क्लिफ? Say fiscal cliff refers to combination of expiring tax cuts and government spendings। तो फिजिकल क्लिफ एक ऐसा कंडीशन है जिसमें गवर्नमेंट जो पहले सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही थी, टैक्स में कॉन्सेशंस प्रोवाइड कर रही थी, उन कॉन्सेशंस को और टैक्स कट्स को और सब्सिडीज़ को ख़त्म करने जा रही है। साथ ही गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स को भी कम करने जा रही है। तो ये कंडीशन ये हो गया कि गवर्नमेंट अब खर्च भी नहीं करेगी इकॉनमी में, साथ ही जो टैक्स कंसेशंस थे या सब्सिडीज़ थे वो भी अब ख़त्म किया जा रहा है। तो इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आ जाएगी, क्योंकि पहले जो हमें टैक्स में कंसेशंस मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, यानी कि हमें अब हायर टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। साथ ही गवर्नमेंट अब मार्केट में स्पेंड भी नहीं कर रही है, तो मार्केट में एक्स्ट्रा मनी सप्लाई भी नहीं हो रहा है, एंड दिस विल लीड टू अ कंडीशन वेयर देयर विल बी लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। लिक्विडिटी मीन्स मनी सप्लाई। सो दिस वाज द चैप्टर 4 फिजिकल पॉलिसी। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द डिटेल्स अबाउट फिजिकल पॉलिसी in our 2 videos. In part 1 we have discussed all the basic terminologies, basic definitions and budget. In this video we have seen some basic terminologies and how government manages its deficit and FRBM Act. In the next chapter we have to understand monetary policy and banking system in India. So I hope you find the video useful. If you find it useful, do like it and do share the video with your friends and loved ones. And we will meet again in the next video. Until then, stay safe and thanks for watching.